हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी लाइफ में। और मेरा नाम अमरीश तिवारी है, एंड एज यू ऑल माइट बी अवेयर बाय नाउ दैट आई एम डूइंग द स्पेशल लेक्चर सीरीज whereby I am covering all of the important bills and acts that have been passed by the parliament in this very successful budget session which ended just 2 weeks back, and it was also the first session of the 17th Lok Sabha under the Narendra Modi government 2.0. सो लेट अस सी कि आज किस एक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. दिस एक्ट इज द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019. द बिल became a law. It was introduced in Lok Sabha on July 25th, 2019, and it finally became a law when it was passed by the Rajya Sabha on July 30th, 2019. It provides for amendment of the Companies Act 2013. So let us, without much ado, without wasting any of the time, let us go through the main features itself. First, expanding the mandatory issue of dematerialized shares by certain more companies. Now, even the unlisted companies have to mandatorily do this. So, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ कंपनीज का क्या होता है. कंपनीज दो प्रकार की होती हैं, विच इज़ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसके शेयर्स बाजार में होते हैं खरीद फरोख्त के लिए, और प्राइवेट कंपनी मतलब वो प्राइवेट फंडिंग होती है, प्राइवेट मेंबर्स होते हैं जो कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से 200 तक हो सकते हैं, और वही उसके शेयर सब्सक्राइब करते हैं और अपने में आदान प्रदान करते हैं. इट इज़ नॉट ओपन फॉर द पब्लिक टू सब्सक्राइब और पुट कैपिटल इनटू इट. सो दैट इज नोन एज द प्राइवेट कंपनी, एंड द वन विच इज ओपन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, whose shares are open for the public to subscribe, is known as the public company. Now public company में भी एक होती है listed company, एक होती है unlisted company. So say if there is, say, a Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange, if my company's shares are listed in some of the stock exchange or secondary market, ठीक है, of the shares, then it is called uh, a listed company. Whose shares have been listed in the stock exchange is called a listed company. मोटा मोटी आप समझ लीजिए. अब यहाँ पे क्या हुआ, एंड द वंस जिसका लिस्टेड नहीं होता है शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको कहते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. इट इज स्टिल ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज, बट नॉट वाया और नॉट थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज. सो इट इज कॉल्ड एन अनलिस्टेड कंपनी. पहले क्या था 2013 में, इश्यू ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड शेयर्स. नाउ डीमेटेरियलाइज्ड शेयर्स, I'm not going into the depth, but I'm just telling you a brief input that dematerialized shares is basically electronic form of share certificate, which is an acknowledgement of your contribution to the capital of the company. Okay, so that is dematerialized shares. Electronic form में हमें सर्टिफिकेट मिल गया. जैसे टिकट आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाता है मूवीज का, वैसे ही शेयर्स उतना लूजली नहीं, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, and then it is sent to you, and it involves your digital signature and the common seal or digital common seal of the company as well. So अब क्या होगा कि डिमेटेरियलाइज्ड शेयर्स जो 2013 के एक्ट के बाद से सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को ही मैंडेटरीली देना था अपने शेयर होल्डर्स को, it is now extended even to the unlisted public companies, that they also have to mandatorily issue dematerialized or demat shares as we know it, or e-shares to the shareholders. Now coming to the next point, recategorization of 16 offences as civil defaults, which the adjudicating officers will hear and decide upon. The 2013 Act contained 81 compoundable criminal offences punishable with fine or imprisonment or fine or both. These offences are to be heard by courts. अब इसमें से 81 compoundable offences में से 16 प्रकार के offences have been notified as civil defaults via this bill, through this bill, where only the adjudicating officers appointed by the central governments will now levy penalties. मतलब 16 जो थे, 81 में से 16 ऑफेंसेस को सिविल डिफॉल्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, उसको सिविल काइंड ऑफ ऑफेंस मान लिया, उसको सिविल डिफॉल्ट मान के उसमें लेवी सब्सक्राइब कर दिया पेनल्टी की, एंड it does not even have to go to the courts now. It can be adjudicated by the adjudicating officers, which the central government will itself appoint. ठीक है. कुछ एक ऑफेंसेस हैं जैसे issuance of share at a discount and not disclosing it in the prospectus. Second is failure to file annual return, और बाकी सारे भी हैं, 14 बचे हुए. तो अब कब आते हैं अगले पॉइंट पे,
unspent CSR must be transferred to one of the funds mentioned in Schedule 7 of the Act. Under the Act, under the 2013 Act, I'm sorry, if companies which have to provide for CR, they are not able to fully spend it. If they were not fully able to spend it, they just had to disclose in their annual reports about the non-spending. But under the bill or under the Amendment Act, any unspent annual CSR amount must be transferred to one of the any funds that have been mentioned under Schedule 7 of the Act. That is, one example I'm giving is of Prime Minister's Relief Fund within 6 months of the financial year, of the said financial year. तो मान लीजिए मेरा फाइनेंशियल ईयर इज अप्रैल टू मार्च ही होता है जनरली, पर कंपनी चेंज कर सकती है, बट यहाँ पे एक डिफॉल्ट मान ले रहे हैं कि मेरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर इज अप्रैल टू मार्च ओनली, और अप्रैल टू मार्च में CSR अमाउंट मैंने बताया है वो 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ CSR अमाउंट है। और लेकिन अगले साल मार्च 2020 तक, मान लीजिए मार्च 2020 तक सिर्फ उसमें से 3 करोड़ ही स्पेंड हो पाया है और 2 करोड़ नहीं हो पाया। तो पहले था कि मैं सिर्फ वो डिस्क्लोज करूंगा कि कितना स्पेंड हुआ है कितना नहीं। अब ऐसा है कि मार्च 2020 के बाद 6 महीना अगर ले लें तो सितंबर 2020 तक मुझे 2 करोड़ रुपया शेड्यूल 7 के किसी भी फंड में डालना पड़ेगा। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड हियर। नाउ कमिंग टू the point of debarring auditors from performing a company's valuation if found guilty of proven misconduct. ठीक है, under the previous act, the National Financial Reporting Authority was allowed to debar a member from practicing as a chartered accountant for a period between 6 months to 10 years for proven misconduct. Now the bill amends the punishment to provide for debarment from appointment as an auditor or internal auditor of a company or performing a company's valuation for a period between 6 months to 10 years. मतलब यहाँ ऑडिटर अगर आपका प्रूवन मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाता था तो पहले वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसका लाइसेंस ही छीन लिया जाता था चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल का। बट अभी यहाँ पे पनिशमेंट को थोड़ा कम कर दिया है। It is just provided by this amendment that they cannot act as an auditor to any company, but बाकी प्रोफेशनल्स के लिए जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, और प्राइवेट कंपनीज के लिए, ठीक है, और सॉरी किसी कंपनी के लिए ऑडिटर नहीं बन सकते तो प्राइवेट कंपनी में नहीं होगी, फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, ठीक है, छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए दे कैन वर्क एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहले था कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही उनसे छीन ली जाती थी for any period between 6 months to 10 years based on the level of proven misconduct. But अभी वो ये सिर्फ एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि अगर आप इस तरह के कंडक्ट में पाए जाएंगे तो किसी कंपनी के ऑडिटर नहीं बनेंगे या वैल्यूएशन नहीं करेंगे। बाकी आप गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं, किसी हाईकोर्ट प्रोफेशनल हाईकोर्ट के वकील का आप ऑडिटिंग कर सकते हैं, एज इन उसके लिए काम कर सकते हैं, उसका ITR फाइल करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी फर्म के इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं बिकॉज दैट इज नॉट अ कंपनी दैट इज गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। तो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट आप रह ही नहीं जाते थे, अब रहेंगे बट आप कंपनी के ऑडिटर नहीं बनेंगे। आर यू गेटिंग दिस? नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ prerequisites which have been added which are to be complied with after the incorporation, and all these will be mandatory for the commencement of the business. ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कमेंसमेंट हमेशा इनकॉर्पोरेशन के बाद आता है। पहले प्रिलिमिनरी स्टेप्स, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर शेयर सब्सक्रिप्शन और फिर कमेंसमेंट। ये 4 स्टेजेस हुआ करते हैं बिजनेस कमेंसमेंट के। फाइनली बिजनेस कमेंस होता है कमेंसमेंट के बाद से ही, पर उसका जन्म माना जाता है, उसका बर्थ माना जाता है इनकॉर्पोरेशन की डेट से। सो द बिल स्टेट्स दैट अ कंपनी मे नॉट कमेंस बिजनेस कमेंस ही नहीं कर सकती unless it follows the following 2 points. Firstly, it files a declaration within 180 days of the incorporation confirming that every subscriber to the memorandum of the company has paid for the shares agreed to be taken by him. ठीक है? Second, it files a verification of its registered address with the respective ROC, registrar of companies, within 30 days of the incorporation. ठीक है, इन दोनों को कंफर्म करना ही होगा। दे हैव टू कंफर्म कि सारे सब्सक्राइबर्स अपना पैसा दे चुके हैं,
जितने शेयर्स के लिए उन्होंने डिमांड की थी, एंड दूसरा अपने रजिस्टर्ड एड्रेस का वेरिफिकेशन करना उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के साथ. Second is registration of charges. The act requires, now sorry, yeah, it is on the last point only, in this slide only I got confused. So there have been changes in the registration of charges with ROC. ठीक है. The act requires companies to register charges, mortgages on its property. मतलब प्रॉपर्टी पे कोई भी एनकम्बरेंस होगा, लीगल भाषा में अगर बोलूँ तो कोई भी जिम्मेदारी होगी, जैसे आपने लोन लिया उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो वो प्रॉपर्टी पे एक encumbrance माना जाता है. So any such kind of encumbrances on the property shall have to be registered and told within the 30 days of the creation of the charge. मतलब अगर आज मैं उस पर चार्ज क्रिएट कर रहा हूं अपनी ऑफिस की बिल्डिंग पे मान लीजिए, तो मुझे 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, जो कि एक्सटेंडेबल था 300 दिन तक विद द परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. इसका सिर्फ डेडलाइन बदला गया है. रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, आप चार्जेस के बारे में आरओसी को बताना पहले भी होता था, इसका सिर्फ डेडलाइन चेंज किया गया है कि अब डेडलाइन ऑफ 60 डेज है, एक्सटेंडेबल बाय ओनली 60 डेज. पहले 300 दिन विद द परमिशन ऑफ आरओसी था, अब सिर्फ 60 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट मेड द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ द चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर और कन्वर्जन फ्रॉम अ पब्लिक टू अ प्राइवेट कंपनी. जैसा कि यहाँ सीधे सीधे सिंपल भाषा में लिखा है कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर अपना चेंज करना है, इफ अ कंपनी हैज टू चेंज द फाइनेंशियल ईयर एंड दैट कंपनी इज एसोसिएटेड विद अ फॉरेन कंपनी, दैट पर्टिकुलर कंपनी हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रीजनल ब्रांच. ओके, एनसीएलटी. मान लीजिए बॉम्बे में अंबानी का हेड ऑफिस है, अंबानी का रजिस्टर्ड ऑफिस है. अंबानी ended up, अभी न्यूज में खबर भी आई थी कि it is doing business, it is going to have an association with some company from Dubai for Jio Giga Fiber. Okay, तो उसको करने के लिए Jio Communications, ठीक है, उसको करने के लिए it has associated with a foreign company. So now if it wants to change its financial year, say from April to March, it wants to go from July to June, it wants to go to July to June. तो July to June उनका फाइनेंशियल ईयर करने के लिए it has to get the approval of NCLT. ठीक है, it had to, मतलब पहले it had to. अब क्या है, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रूव कर सकती है, NCLT मुंबई अप्रूव नहीं करेगी. इट विल ओनली बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सिमिलरली एक और चीज में बदलाव है, अगर आप अपनी कंपनी पब्लिक से प्राइवेट करना चाहते हैं, ठीक है, पब्लिक से प्राइवेट करने के लिए पहले NCLT के पास जाना पड़ता था और उसका अप्रूवल लेना पड़ता था. नाउ अगेन दिस पावर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. Next point is the limitation of compoundable offenses increased. ठीक है, under the previous act a regional director can compound means settlement of the offenses with the penalty of up to 5 lakh rupees. जो भी penalty किसी ऐसे offenses जिनमें penalty 5 लाख रुपीस तक की मैक्सिमम सजेस्ट की गई है, ठीक है, या इम्पोज की गई है, उसके लिए कंपाउंडमेंट का अधिकार था रीजनल डायरेक्टर के पास. नाउ द बिल इंक्रीजेस दिस सीलिंग टू ₹25 लाख. अब 25 लाख तक के जो पेनल्टी वाले गुनाह हैं, ऑफेंसेस हैं, ठीक है, वायलेशंस हैं, दैट कैन बी सेटल्ड और कंपाउंडेड बाय द रीजनल डायरेक्टर. इट्स अथॉरिटी ऑन abatement or on compounding of those offenses has increased. Next is government can file complaint against some officer of the company it deems incapable. Under the previous act, the central government can apply, or certain shareholders in a class action suit can apply to the NCLT for relief against mismanagement of the company. ठीक है? The bill states that in such a complaint, the government may also make a case against any particular officer of the company on the ground that he is not fit to hold office of the company for reasons such as fraud or negligence. तो मतलब पहले जहां गवर्नमेंट या कुछ शेयर होल्डर्स क्लास एक्शन सूट फाइल करके मिसमैनेजमेंट की खबर ले सकते थे अच्छे से, वहां पे अब ये मिसमैनेजमेंट के साथ साथ कंपनी को भी घेर सकते हैं और उसके साथ साथ किसी ऑफिसर पे भी पर्सनली सूट चला सकते हैं, पर्सनली चार्जेस प्रेस कर सकते हैं एनसीएलटी के थ्रू. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इफ द एनसीएलटी passes an order against the officer, he will not be eligible to hold office in any company for 5 years.
ठीक है। ये यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बस ऑब्जर्व कराना चाहूंगा कि सहारा वर्सेस सेबी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि अगले 5 साल तक ये एक अमेंडमेंट आप लाएं जिससे अगर कोई फाउंड होता है तो और एनसीएलटी ऑर्डर पास करता है उसके अगेंस्ट, तो 5 साल तक उसको डिबार कर दिया जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए मैं गवर्नमेंट को दाद देना चाहूंगा। एंड यू ऑल्सो मस्ट नोट इट, सहारा वर्सेस सेबी केस 2013। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, that is company to take steps to identify beneficial owner and also to ensure that they abide by the act. If a person holds, now what is beneficial interest or beneficial ownership? अगर कोई इंसान, if a person holds a beneficial interest of at least 25% of shares in a company or exercises significant influence or control over the company, he was held to be a beneficial owner and was required to make a declaration of his interest. ये एक बहुत नॉर्मल सा अमेंडमेंट है कि कंपनी को इस एक लाइबिलिटी दी गई है, एक पॉजिटिव मॉरल इम्प्लीडमेंट दिया गया है इस अमेंडमेंट के थ्रू, that they have to identify that in such an individual and require their compliance to the act. I thank you so much for your attention. I'll meet you in some other lecture. तब तक के लिए bye bye.